Okay, so here we have seen that कि जब resting potential रहेगा, right? So that जो potential रहेगा वो nerve का it will be minus 70 millivolt. Why? Because it is in a rest stage. तो वहाँ पे कुछ भी action perform नहीं होगा. But still they have a leaky potassium channel. That's it. That you have to remember. After that, जैसे ही impulse इसमें आना start होगा, this will gonna shoot up and it will reach towards the minus 60. जैसे ही minus 60 millivolt पे जाएगा, that sodium channel will gonna open and all the ions will come into the axon. Okay. अब फिलहाल के लिए इतना ध्यान रखो, axon में सब जितने न्यूरॉन्स से सब आ गए. Yes, this will be stage is known as depolarization. Why? Because axons के अंदर और पॉजिटिव आयंस आ गए, राइट? तो अभी पॉजिटिव आयंस आने के बाद क्या हो जाएगा? जब पॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी विल गोना इंक्रीज एंड विच शोज दैट जो पोलराइज्ड स्टेट था नाउ विल गो अंडर depolarized state. Okay, and as soon as it reaches till plus 30 or plus 50, it shows that this is an action potential state where your sodium channel will gonna close but potassium channel will gonna open. Why? जो अंदर का जो भी पॉजिटिविटी है that has to be removed outside. पॉजिटिविटी जो है that has to be removed outside, and जो plus 30 plus 50 पे जाएगा they will gonna start decreasing and they will gonna reach, उनको पहुंचना है minus 70 तक, but due to some leaky potassium channel they will gonna lose down, and यहाँ से जो ये ऊपर का जो स्टेट है, ये वाला जो स्टेट है, that will gonna taken care by the sodium potassium motor. Okay, or you can say sodium potassium ATPase. Why they have used the word ATPase? Okay, because ATP is acting as an enzyme, that's why ASC ATPase. And what is the role of ATP inside the motor? To provide the energy so that they can rotate and they can move the sodium ions from lower to the upper end and potassium ion from upper to the lower end. Have you got this graph? And this will be the repolarization state, because they are being approached towards the polarized state. Have you understood or not? Yes, sir. सबको समझा? Yes, sir. बाकी लोग? Yes, sir. तो सबको एक पूछू क्या? हाँ सर, समझना सर. Okay. Let's move on to the most interesting topic. Okay. So कि अभी तक हम लोग ने देखा कि वो जो सोडियम चैनल से इंपल्स अंदर आ रहे हैं. ओके, अब ये एक मिनट है, किसको डायग्राम समझा क्या? ओके, Yes, sir. जिसको अगर नहीं समझा रहेगा तो एक मिनट है, थोड़ा सा पेंसिल से बनाया तो दैट्स व्हाई इट इज समथिंग लाइक यू नो ब्लैकिश टाइप एंड थोड़ा ग्रेइश व्हाइटिश टाइप है. सर वो एक्सॉन टर्मिनल है ना, कौन सा? वो ऊपर वाला अभी आपने जो पेंसिल से किया. हाँ, ऊपर वाला एक्सॉन है और नीचे वाला क्या है? सर डेंड्राइट. ओके, अभी जिसको नहीं समझा है वी गोना रिपीट. देखो, ये न्यूरॉन्स रहते हैं. ओके, ये न्यूरॉन्स रहते हैं. ओके, देन यू हैव एन एक्सॉन एट द एंड. ओके, ये तुम्हारे एक्सॉन रहते हैं. देन इसको एक कंटिन्यू, येलो दिख रहा है तुम लोग को डायग्राम? यस सर दिख रहा है. ओके, तो ये आगे कंटिन्यू इसका एक्सॉन रहेगा. ओके, ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला जो एरिया, ओके, जहां पे ऊपर वाले का एक्सॉन और नीचे वाले का डेंड्राइट्स, तो आपको जो ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये एक्सॉन है, और ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, ये डेंड्राइट्स है.
सबको समझा? ये दो न्यूरॉन है, ये फर्स्ट न्यूरॉन का एक्सॉन पार्ट है, एक्सॉन टर्मिनल यू कैन से, ओके, एंड ये वाले का डेंड्राइट है। ये सबको समझा या नहीं समझा? समझा सर। Okay. And the most interesting part, what is that? एक minute. Most interesting part, the gap which you are showing over here, जो आपको gap दिख रहा है, okay, seeing over here, that gap is known as synapse. That gap is known as synapse. तो ये जो gap आपको दिख रहा है, okay, ये जो आपको gap दिख रहा है, this gap is known as synapse. Okay, you can know the spelling of synapse. Yes or no? Can I rub this diagram? Okay, now see. अब इसमें बेसिकली क्या होता है? Okay, so these are the neurotransmitter. Okay, ये न्यूरोट्रांसमीटर, बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर रहेंगे. Okay, but ये न्यूरोट्रांसमीटर ऑटोमेटिक आते नहीं है, ये बनते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर बनते हैं. Okay, so here you have calcium, sodium and calcium channel. You have sodium and calcium channel. Okay. Now we're going to see is calcium इसमें क्या रोल प्ले करने वाला है. Okay, so here you can see here neurotransmitter. ये न्यूरोट्रांसमीटर बनाने में, न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसिस करने में कौन हेल्प करता है? एंजाइम. कौन हेल्प करता है? ये एंजाइम. सो ये जो एक एंजाइम है, ओके, जो ये न्यूरोट्रांसमीटर को सिंथेसाइज करेगा, बनाएगा, देन इसको एक ग्रुप करके एक पर्टिकुलर एरिया में इसको सब न्यूरोट्रांसमीटर को एक साथ ग्रुप में वो कोलैबोरेट करेगा. ओके, so this will gonna taken care by the enzyme. Okay, now after that sodium, definitely sodium ions क्या, जैसे इसको impulse आएगा, जैसे इसमें impulse आएगा, that the sodium channel will gonna open और इसमें जो भी particular signal है that will gonna transfer over here in the axon. Now what happen? ये जो कैल्शियम है, ये जो कैल्शियम आयन है, ओके, जो यहाँ पे जो डॉट डॉट से कैल्शियम बना है, राइट, ये आपका तुम्हारा कैल्शियम आयन, this will gonna bind to this neurotransmitter. क्या हो जाएगा? ये कैल्शियम आयन will gonna bind to the neurotransmitter. ये क्या है? ये कलेक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर है. ओके, पूरा एक ग्रुप बना है. अभी ये जो न्यूरोट्रांसमीटर ये बने कैसे? with the help of an enzyme. तो enzyme will gonna help to synthesize the neurotransmitter and they will gonna pack. Okay, they will gonna pack. Okay, यहां तक सबको समझा? कैल्शियम आयन का क्या काम है? कैल्शियम आयन क्या होगा? कैल्शियम चैनल ओपन होगा, उसके वजह से क्या होगा? कैल्शियम आयन विल गोना कम ओवर हियर एंड ये एक पैकेज पे जाके अटैक करेगा. अटैक इन अ सेंस they will gonna bind to that particular package section of the neurotransmitter. इतना समझा? यस सर. ओके, अभी जो कैल्शियम आयन है, जो ये न्यूरोट्रांसमीटर को पैकेट के साथ बाइंड हुआ है, उसका मेन कंसर्न क्या है? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कैल्शियम आयन दिस विल गोना मूव एंड जैसे वो यहाँ पे आ जाएगा, दिस विल गोना रप्चर एंड दिस विल गोना रिलीज द न्यूरोट्रांसमीटर. तो ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर देगा. न्यूरोट्रांसमीटर में क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर में तुम्हारे सिग्नल्स है. न्यूरोट्रांसमीटर में क्या है? तुम्हारे सिग्नल्स है. ओके, एंड बेस्ड ऑन दैट the signal will gonna transfer from one to other neuron. Have you understood? Yes, sir. Okay. अभी जैसे मैंने बोला ये सिनैप्स है. ओके, तो सिनैप्स के जो ऊपर का पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट. क्या बोलते हैं? प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट, CLEFT. और इसके नीचे वाले को क्या बोलते हैं? पोस्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट. क्या बोलते हैं? पोस्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट. नाउ सो सिनैप्स के ऊपर वाला विल बी प्री सिनेप्टिक एंड सिनैप्स के नीचे वाला इट विल गोना बी पोस्ट सिनेप्टिक. नाउ द मेन कम्स इनटू पिक्चर. ये जो न्यूरोट्रांसमीटर आए, just a minute. Okay, so ये जो अभी न्यूरोट्रांसमीटर आए हैं, okay, जो न्यूरोट्रांसमीटर अभी यहाँ पे आए, okay, now there are possibilities that some of will be come over here, some of will be come over here.
Okay, now in dendrites, why we have two different phase? Okay, because your dendrites पे you will gonna see the receiver. ये एक receiver है, ये एक receiver है, जिसपे आके neurotransmitter will gonna bind. Neurotransmitter will gonna bind to that particular area. Okay, जहाँ पे उसको bind होना है into the dendrites, and जैसे ये सिग्नल यहाँ पे आ जाएगा, सोडियम चैनल विल गोना ओपन फ्रॉम हियर एंड उसके सोडियम आयंस विल गोना कम इनसाइड द डेंड्राइट्स, और इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आयन विल गोना इंक्रीज. पॉजिटिव आयन इंक्रीज होगा मतलब कब तक इंक्रीज होगा, +50. जैसे +50 पे जाएगा, they will again gonna repolarize and the signal will gonna transfer to the next, and in this way the signal will gonna move from this dendrites to the cyton and then axon. Okay, now तो जैसे ही इस पे पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर विल गोना बाइंड, सोडियम चैनल विल गोना ओपन and this will go under depolarized state. Okay, now the question is why we have two parts in one dendrites. Okay, why we have two parts in a one part of a dendrites? Because both of them, they have their different functionality. Okay, when I'm saying functionality means what is the key difference? The key difference, if I'm trying to say, here you will going to see excitatory function. Excitatory means what? ये वाला जो भी न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे आएगा, they will gonna excite this signal and they will gonna transfer to the neuron, next neuron to the next neuron. Okay, and in this way conduction will gonna take place. But second वाले में क्या है? They are inhibitory. They are inhibitory. अब कैसे? Let's see. Okay, let me change the color. So let's say ये जो है ये inhibitory है, ये यहाँ पे आके यहाँ पे ये bind हो गया. Okay, this will gonna bind to that particular receptor area. जैसे वो bind हो जाएगा, chloride channel will gonna open. Okay, chloride means negative. तो negative आने के बाद यहाँ पे negativity बढ़ जाएगा. Okay, तो negativity बढ़ जाएगा, इसका मतलब क्या है? ये -70 ऑलरेडी रहता है, -70 से और कितना जाएगा? -80, -90, -100, -120 and all. उसकी वजह से क्या हो जाएगा? This will gonna in a hyperpolarized state. समझा या नहीं समझा? That will gonna in a state of hyperpolarized. Okay, and as the electronegativity will gonna increase, तो ये वाले पार्ट से आगे के तरफ सिग्नल कंडक्ट नहीं होगा. That's why this is known as inhibitory. Means this area will gonna inhibit the functionality of that neurotransmitter. समझा या नहीं समझा? Repeat once again. सर एक बार रिपीट करो ना. Sure. Okay, मैं स्टार्टिंग से फिर से रिपीट करता हूँ. बट एक क्विक ओवरव्यू देता हूँ. what you have to remember. ये वाले में क्या होता है वो याद रखना. क्या होएगा इसमें? ये जो एंजाइम बनाने हैं हमको, we have to build neurotransmitter. तो न्यूरोट्रांसमीटर बनाने में कौन हेल्प करेगा? एंजाइम हेल्प करेगा. एंजाइम क्या करेगा? इसको लेगा, बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद सबको एक ग्रुप में एज अ कॉलोनी में फिक्स कर देगा. राइट, सबको एक ग्रुप में कर देगा. ओके, एंड देन they will gonna going to say this is the group of the neurotransmitter. Okay, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया. एंजाइम will gonna help to synthesize the neurotransmitter. ये फर्स्ट पार्ट हो गया. नेक्स्ट पार्ट, you have sodium channel and calcium channel. So sodium channel will gonna open as per the signal will gonna receive. But what about calcium channel? This calcium channel will gonna open and come inside the axon. Now the question is इसका काम क्या है? Calcium ion will gonna bind to the group of the neurotransmitter. उसके outermost layer पे वो bind होगा. क्यों bind होगा? Because this will gonna come over here. तो उसको जो movement करने के लिए, okay, उसको locomote करने के लिए they require calcium. जैसे calcium will gonna bind to that package neurotransmitter, that package neurotransmitter will gonna move from there and come closer toward the synaptic cleft. And यहाँ पे आने के बाद they will gonna burst and this neurotransmitter will gonna release. Now ये जितने भी जो ट्रांसमीटर आए, इसमें से कुछ ट्रांसमीटर will be function as a excitatory function, they will gonna excite, or some of them will be working as a inhibitory function. Inhibitory मतलब वो function को stop कर दें. Okay,
लेट्स से ये वाले पार्ट में जाएगा, सॉरी एक्स साइड पार्ट में जाएगा, तो व्हाट विल गोना हैपन, दिस ट्रांसमीटर विल गोना बाइंड टू द रिसेप्टर एरिया एंड फ्रॉम दैट दिस विल गोना कंडक्ट। तो जैसे यहाँ पे आ जाएगा सोडियम चैनल विल गोना ओपन, उसकी वजह से क्या होगा, पॉजिटिविटी विल गोना इंक्रीज, डीपोलराइजेशन होगा एंड द डीपोलर होने के बाद they will gonna conduct okay to the next, तो ऐसे कंडक्ट होने के बाद they will gonna move from here and they will gonna reach towards the as per the जो उसको जहां जाना है। नेक्स्ट, अगर वो इनहिबिटरी है, अगर वो इनहिबिटरी है तो ये वाले एरिया में जाएगा और ये वाले एरिया में जाने के बाद फ्लोरेट चैनल विल गोना ओपन, यहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ते चला जाएगा एंड विच शोज दैट दे विल गोना रीच हाइपर पोलराइज्ड स्टेट। हमको क्या चाहिए था, हमको यहाँ पे पॉजिटिव आयंस चाहिए था, ना कि नेगेटिव आयंस चाहिए था। अगर नेगेटिव आयंस बढ़ते जा रहा है विच शोज दैट आपको -70 से -60 जाना था, बट -70 से they will gonna reach -80, -90, -100 and -120 and so on, which shows that they are in a hyperpolarized state and that's the reason यहाँ पे कंडक्टिविटी, ये जो इंपल्स यहाँ पे आए वो आगे कंडक्टिविटी जाएगा नहीं, आपका वो फंक्शनलिटी स्टॉप कर देगा। अब ये कब यूज होता है, whenever you will gonna get an injection of sleeping, okay, जब आपको सुलाना है उन लोग को या एनेस्थीसिया देना है तो exactly क्या होता है, they will this nerve area will gonna trigger and वो ये वाले एरिया में जाएगा and we show that कि तुम्हारे nerves काम करना बंद हो जाते हैं। You will never receive, you will never feel a sensation on that particular area and your brain stops working and we show that you have been a relaxed position, okay, तो आप sleeping mode में चले जाते हैं, okay, and this there are some drugs which are working in terms of as an inhibitory over here, okay, like sleep inducing drugs and all. But when it comes to the excitatory function, so there are serious, okay, excitatory means what, okay, okay, if someone asks you some question, okay, question like what is your favorite book that you have read, okay, what is the favorite letter from alphabets, okay, what are favorite color, favorite ice cream and all, and you will gonna give the answer with a confidence, which shows that that is an excitement, okay, that particular signal that you will gonna receive, okay, that and from it will receive and we will gonna from the tongue, okay, if someone asks your favorite color, you will gonna share like red, yellow, orange, whatever it will be, right? So that shows that excitatory function of the particular signal, okay. But when it comes to the inhibitory function, which shows that your brain stops working, you are, okay, and you are in a relaxed position, you are in a sleeping position, that shows that the inhibitory function of that particular neuron path, okay. So have you understood this, all of you? Yes, sir. सबको समझ में? मैं बताओ ना फिर से। अच्छा ठीक है, Sir. प्रणय तू हाँ बोलो। वो आपने इनहिबिटरी बताया था ना, हाँ वो एक बार फिर से बताओ। ओके, सो लेट मी मैं पूरा स्टार्टिंग से बताता हूँ वापस। चलो, सो दिस इज लेट्स से इज एन एक्सॉन टर्मिनल, this is the next neuron for dendrites, okay, and this is ready to take the impulse from the previous neuron or a presynaptic. So you have to use the word presynaptic and postsynaptic. आप ऐसे नहीं बोलोगे, आप you can say axon terminal, but उसका जो ऐसा नहीं बोलोगे dendrites of the next neuron, okay. So for more precisely you have to use the word presynaptic and postsynaptic cleft, okay. Next, इसमें जो enzymes हैं, okay, because you have to build the neurotransmitter and neurotransmitter will gonna build with the help of an enzyme, okay. So enzyme बनाएगा, they will gonna merge into in a group, okay, when you will get the collection of all the neurotransmitter. You have sodium channel, calcium channel. Calcium channel will come into picture. Why? Because just because of this calcium, this particular group will gonna mobilize. Mobilize means locomote, okay, and locomote, and they can come over here closer to the axon terminal and they will gonna release all the neurotransmitter, okay. Now some of the बोलो सर कोई भी सिग्नल सर आएगा तो सर यही प्रोसेस होता है कि Right. सीए रिलीज होता है, फिर न्यूरोट्रांसमीटर मोबिलाइज होते हैं, फिर न्यूरोट्रांसमीटर्स
आगे पास ऑन होते। राइट कोई भी सिग्नल रहेगा ये फंक्शनलिटी हाँ मतलब जितनी बार सिग्नल्स आएंगे उतनी बार ऐसा ही होता है राइट ऐसे ही होगा। सर। रिफ्लेक्स में भी ऐसा ही। हाँ हाँ Reflex रिफ्लेक्स में भी ऐसे है, क्योंकि because that signal if you want to transfer from one neuron to another neuron that this process will gonna happen, okay? अभी तुम at a time एक ही पढ़ रहे हो, right? ऐसा बहुत सारे ट्रांसमीटर रहते हैं, okay? अभी सिर्फ हम लोग फिलहाल पढ़ने के लिए इन डेप्थ हम लोग सिर्फ एक ही पकड़ रहे हैं। एट अ टाइम बहुत सारे रिलीज होते हैं, ओके? और ये बहुत क्विक फास्ट होता है। अभी हम लोग जैसा पढ़ रहे हैं इतना स्लो नहीं होता है, ओके? इट वाज वेरी क्विक एक्शन एंड यू ऑलरेडी नो अबाउट दैट रिफ्लेक्स एक्शन कितना फास्ट वर्क करता है, राइट? यस सर। Okay. और कुछ डाउट्स? ग्रेट, गुड क्वेश्चन। ओके, सो अभी ये जो ट्रांसमीटर रिलीज हो गए, राइट? अब क्या होगा, इसमें से जो एक्साइट वाला ट्रांसमीटर रहेगा दे विल गोना कम ओवर हियर एंड दे विल गोना एक्साइट एंड बेस्ड ऑन दैट जैसे यहाँ पे आ जाएगा सोडियम चैनल विल गोना ओपन, पॉजिटिविटी अंदर बढ़ेगा, दे विल गो डीपोलराइज एंड दिस विल गोना कंडक्ट। नाउ when it comes to the inhibitory, what happens in that, you have chloride ions or chloride channel, they will gonna open, due to which chloride ion will come into picture, negativity बढ़ता जाएगा, this will gonna go under the hyperpolarized state which we don't require and इसकी वजह से conductivity यहाँ पे stop हो जाता है and we have a sleep inducing drugs and all, जो basically जो तुम्हारा main functionality जो neurons को ही रहता है for certain period of time के लिए बंद कर देता है, okay? And that's why I hope all of you know the example of anesthesia, right? Yes sir. Then this is the one best example. Surgical operations. Right. And the most interesting part, अभी ये जितने भी जो ट्रांसमीटर बाहर आए हैं इनका गारंटी नहीं है। क्या गारंटी नहीं है? कि सबके सब आगे कंडक्ट होंगे। That's the most important part, right? सबके सब आगे कंडक्ट होंगे। अब क्या होता है, कुछ वापस चले जाएंगे प्रीसिनेप्टिक क्लेफ्ट में, कुछ को ये एंजाइम जो है पेंसिल के जो एंजाइम्स है उन पे बाइंड होके दे विल गोना डिग्रेड, तो क्या कर देंगे उधर ही खत्म कर देंगे, ओके? सर हाँ सर राइट साइड वाला सिर्फ क्लोरीन का चेंबर है। कौन सा, ये वाला? हाँ सर, सिर्फ क्लोरीन कंडक्ट होंगे। हाँ, यहाँ पे सिर्फ क्लोरीन अंदर आएंगे, ओके? क्लोराइड आयन आने की वजह से यहाँ पे नेगेटिविटी बढ़ जाएगी, ओके? सो हाँ सर फिर यहाँ पे सर जो न्यूरोट्रांसमीटर सर मोबिलाइज होके सर जो ट्रांसफर हो जाते सर हाँ। प्री सिनेप्स से पोस्ट सिनेप्स में, तो हाँ। फिर सर वापस से यहाँ सफिशिएंट उतना न्यूरोट्रांसमीटर्स कहाँ से प्रोड्यूस होते? neurotransmitter will gonna produce by the hormones, right? जो हार्मोन सिग्नल देगा न्यूरॉन्स को, ओके? वो हम लोग हार्मोन वाले पार्ट में पढ़ेंगे। एंड यहाँ पे एक एंजाइम भी एक रोल प्ले कर रहा है जो आपको न्यूरोट्रांसमीटर बनाने में हेल्प करता है। तो एज पर द रिक्वायरमेंट दिस एंजाइम विल गोना वर्क एंड दे विल गोना मेक एज मच एज न्यूरोट्रांसमीटर रिक्वायर्ड, ओके? तो जितने ट्रांसमीटर बनेंगे कुछ आगे जाएंगे, जिसको आगे नहीं जाना दे विल गोना कम बैक, कुछ एंजाइम उसको डिग्रेड कर देगा, ओके? सो नेक्स्ट वी हैव समथिंग लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेरोटिन, ओके? सेरोटिन क्या करता है? दिस इज द बेसिकली a kind of a transmitter, okay, which plays a major role when to for the excitatory function। तो ये वाले पर्टिकुलर पार्ट के लिए जो सेरोटिन है, ओके, इसका जो लेवल है दैट शुड बी मेंटेन। तो जिसके हाँ सर वो ब्लू और रेड वाले में क्या डिफरेंस है? कौन से वाले में? ये और इसमें जो ट्रांसमीटर्स हैं, ओके, उनके जो फंक्शन है ना उसमें डिफरेंस। जैसे कि ये वाला इसका जो फंक्शन है ना, ये एक्साइटमेंट मतलब दिस इज समथिंग व्हिच रिलेट्स टू योर इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल, इन टर्म्स ऑफ योर हैप्पीनेस लेवल, ओके? जैसे फॉर एग्जांपल तुमको कुछ काम करना है बट तुमको आलसीपन आ रहा है, व्हिच शोज दैट कि तुम्हारे ब्रेन को वो जो पर्टिकुलर काम करना है वो तुम्हारे ब्रेन तक जा रहा है, बट यू आर नॉट इन अ पोजीशन कि तुमको काम करना नहीं, जिसकी वजह से ना तुमको आलसीपना आएगा, राइट? अगर वो ब्रेन में जा भी रहा है बट स्टिल तुमको आलसीपना आ रहा है, which shows that कि that particular signal is not working for you, okay? Whenever you will going to see it, जब तो तुम लोग for some activity, okay, you will be more energized। अगर जैसे for example अगर ऋतुराज को बोल देंगे कि there is a particular event which is going for the particular bike event, so definitely उसका जो excitement level रहेगा as compared to other activity will be gonna more, and वो time पे he will not gonna do some other activities, and for that activities
that inhibitory will gonna work into picture. Have you got? Sir, and what about red ones? रेड वन ही इनहिबिटरी है और जो ब्लू वाला है वो एक्साइटमेंट वाला है. तो सर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स यहाँ पे सर ये क्या है सर जो इनहिबिटरी से सर वहां से हाँ. आगे कैसे ट्रांसफर होते? इनहिबिटरी में आगे ट्रांसफर हो गया ना. क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिविटी नेगेटिविटी बढ़ गया है. और हम लोगों ने क्या देखा था, जैसे ही कोई भी इंपल्स का अगर -60 मिलीवोल्ट पोटेंशियल जैसे हिट होता है, ओके, -60 मिलीवोल्ट अगर हिट होता है तो विच शोज दैट कि वो आगे कंडक्ट करना है. बट ये केस में तुम्हारा -70 मिलीवोल्ट ऑलरेडी है, राइट? जो रेस्टिंग पोटेंशियल में कितना रहता है? -70 रहता है. सर ये जो आप कंडीशन बता रहे हो सर, ये एनेस्थीसिया का कंडीशन बता रहे हो? एनेस्थीसिया का कंडीशन ये वाला है, इनहिबिटरी वाला, जहां पे तुम्हारा वो पर्टिकुलर एरिया के न्यूरॉन्स सब बंद हो जाएंगे. बंद इन द सेंस दे विल नॉट फंक्शनैलिटी, ओके, उसके सिग्नल तुम्हारे ब्रेन तक नहीं पहुंचेंगे. तो यहाँ पे आप जो भी सिग्नल दोगे ना वो आपके ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा. क्यों? क्योंकि हाँ सर हर न्यूरोट्रांसमीटर में Na+ और Cl- होता है. इसमें सर हर न्यूरोट्रांसमीटर में Na+ और Cl- होता है. नहीं बेटा, ये देख यहाँ पे ना Na+ आयंस रहेंगे बाहर, ओके. और ये पर्टिकुलर न्यूरॉन के लिए सिग्नल आया है. जैसे सिग्नल आएगा, हम लोगों ने क्या देखा था, सोडियम चैनल ओपन होते हैं और ये सोडियम आयंस अंदर आएंगे, ओके. बट इनहिबिटरी के केस में जो क्लोराइड चैनल है वो ओपन होता है, ना कि सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल ओपन नहीं होते, ओके. तो क्लोराइड चैनल ओपन होगा, जिसकी वजह से जो बाहर के जो क्लोराइड आयंस है वो अंदर आके यहाँ का नेगेटिविटी और बढ़ा दे. अभी समझा? सर मतलब हर न्यूरॉन में दो अलग अलग चेम्बर्स होते हैं. न्यूरॉन में तो तुमको पोटेशियम भी मिलेगा, सोडियम भी मिलेगा, क्लोराइड भी मिलेगा और आपको कैल्शियम भी मिलेगा, क्योंकि ये जो एक्सॉन है वो भी न्यूरॉन का पार्ट है. तो तुमको 3-4 चैनल मिलेंगे, बट बेस्ड ऑन दी रिक्वायरमेंट चैनल्स ओपन होते हैं. समझा? जैसे हम लोग ने ग्राफ में भी देखा था, राइट? इसलिए पहले लेक्चर में क्या देखा था, जैसे ही आपका जो पोटेंशियल है वो -60 से लेके जो +30 +50 पे जाता है, तब तक आपका सोडियम चैनल ओपन है, पोटेशियम बंद है. बट जैसे ही +30 +50 जाएगा, व्हिच इज एक्शन पोटेंशियल, सोडियम चैनल विल गोना क्लोज एंड पोटेशियम विल गोना ओपन. सो बेस्ड ऑन द कंडीशन चैनल ओपन होते हैं. तो जो चैनल, हाँ सर, तो फिर जो Cl वाला चैनल है सर वो कब होता है? ये इनहिबिटरी स्टेट पे. सर बट इनहिबिटरी स्टेट मतलब कैसे कंडीशंस? कैसे कंडीशन? लाइक जैसे फॉर एग्जांपल दैट पर्टिकुलर सिग्नल तुमको ब्रेन तक नहीं पहुंचाना है, तो वो टाइम पे इनहिबिटरी कंडीशन आ जाएगा. क्योंकि इनहिबिटरी कंडीशन में क्या होता है पहले वो समझो, राइट? इनहिबिटरी कंडीशन में क्या हो जाएगा, क्लोराइड चैनल ओपन हो जाएगा, तो क्लोरीन आयन अंदर आएगा. तो क्लोरीन अंदर आने से क्या होगा, नेगेटिविटी बढ़ेगा, पॉजिटिविटी बढ़ेगा? नेगेटिविटी. तो नेगेटिविटी रेस्टिंग में कितना है, -70 है. अगर बढ़ेगा मतलब ये कितना जाएगा? सर कम होगा मतलब नंबर में? हाँ सर नंबर्स में कम होगा वो. -70 है तो बड़ा तो सर कम होगा नंबर्स में. हाँ. बट ये जो इसका जो स्टेट रहेगा दैट विल गोना हाइपरपोलराइज. क्यों? क्योंकि अंदर आपको कौन से आयंस चाहिए, पॉजिटिव आयंस चाहिए, ओके. जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप यहाँ पे देखो, सोडियम चैनल में यहाँ पे पॉजिटिव आयंस है, राइट? तो यहाँ पे पॉजिटिव आयंस आने के बाद दिस विल गोना कंडक्ट, बट यहाँ पे नेगेटिव आयंस है एंड विल शोज दैट कि यहाँ के जो आगे के जो इंपल्स हैं वो आगे कंडक्ट नहीं होंगे. समझा या नहीं समझा? तो सर जो पॉजिटिव है सर, पॉजिटिव आयन से सर जो ये केस में सर, हाँ सर, एक्साइटेड स्टेट में, तो सर वो जो पॉजिटिव Na+ है तो वो बैलेंस सर किससे होता है? पोटेशियम से. Na है और उसमें पोटेशियम है. तुम लोगों ने कल का जो पार्ट देखा था, लेट मी गो टू द लास्ट लेक्चर. सर मतलब सिनेप्स में सर क्लोरीन की मात्रा बढ़ गई तो वो चेम्बर खुल जाएगा? सिनेप्स में नहीं, जब कभी भी ये वाले एरिया में जो भी ट्रांसमीटर आके बाइंड होगा ना, तब क्लोरीन चैनल विल गोना इंक्रीज, ओपन हो जाएगा.
ओके वही सर सर। सर तो ये कंडीशन एनेस्थीसिया में होता है, ऐसे यूजुअली Yes. सर एक्साइटेड में आके होता है। हाँ, एनेस्थीसिया एंड जो भी एक्टिविटी जो तुम लोग आलसीपना करते हो ना वो पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए, तो आपको एक्टिविटी करना ही नहीं है, ठीक है, तो वो वाले स्टेट में भी इनहिबिटरी काम करता है। तो सर एक एक्टिव पर्सन के लिए, एक्टिव माइंड के लिए सर यही वाला जो एक्साइटमेंट वाला काम आता ओके है सर। एक्टिव पर्सन के लिए, समझा? हाँ सर। ओके, और प्रणय और किसी को कुछ डाउट है? सर जो Na है सर वो कैसे बैलेंस होता है, और सर Cl माइनस है वो कैसे बैलेंस होता है? ओके ओके, सर पिछले वाला वीडियो दिखाओ ना सर, पिछले लेक्चर में वीडियो बताए थे। वीडियो के टाइम पे ये नहीं था ऋतुराज? नहीं था सर। हाँ बट कुछ समझ नहीं आ रहा था, अभी थोड़ा ध्यान दिया तो समझ में आया। ओके चलो ठीक है, जस्ट एक ओवरव्यू बताता हूँ। ये तुम्हारा एक न्यूरोलिमा लेयर है, बट फिलहाल के लिए ये एक लेयर याद रखना, ओके। ये लेयर में बाहर के तुम्हारे जो पॉजिटिव आयंस है, ओके, बाहर के तुम्हारे जो पॉजिटिव आयंस ऑलरेडी है, ओके, पॉजिटिव आयंस इट मे बी सोडियम और पोटेशियम, और नीचे आपके रहेंगे क्लोरीन आयंस, ओके, जो नेगेटिविटी रहेगा, ओके। बट बाहर का जो एरिया है, ओके, यू विल गोना मोर सोडियम आयन रादर देन पोटेशियम आयन। क्यों बाहर ज्यादा तुमको सोडियम आयन बाहर ज्यादा क्यों चाहिए? उसका रीजन ये है ताकि जो अगर तुमको इंपल्स आगे कैरी करना है तो सोडियम ही एक ऐसा आयन है दैट विल गोना कैप्चर दैट सिग्नल और इंपल्स एंड दैट विल गोना ट्रांसफर टू वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ओके। तो इसके लिए जब जब सोडियम चैनल ओपन होगा at that time you can think that signal will gonna transfer from one particular area to other area of the neuron, okay, and then synaptic जैसे ही एक्सॉन टर्मिनल में पहुंचेगा वो आगे कंडक्ट होगा, ओके। अब इसमें कैसा बैलेंस है, ओके, यहाँ पे मोस्टली दे आर बैलेंसिंग द पॉजिटिव आयंस एट द टॉप एंड पॉजिटिव आयंस एट द बॉटम। पॉजिटिव आयंस एट द टॉप, इफ आई एम सेइंग पॉजिटिव आयन वहां पे सोडियम देखेंगे एंड पॉजिटिव आयन यहाँ पे पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे। कॉन्सेंट्रेशन मींस इफ आई एम सेइंग कि यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल्स, ओके, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम है, ओके, एंड नीचे 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम है, ओके। नाउ दे विल गोना कंपेयर, ऊपर आपको पोटेशियम भी रहेगा और नीचे आपको सोडियम भी रहेगा, ओके। बट क्या रहेगा, ऊपर का जो सोडियम का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा इट विल गोना मोर एज कंपेयर टू दी पोटेशियम। मतलब पोटेशियम का आपको 10 से कम, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 5 मॉलिक्यूल, ओके, एंड इन द सेम वे सोडियम का विल बी गोना एज अ 5 मॉलिक्यूल। सो नाउ दिस स्टेट इज अ बैलेंस स्टेट, ओके। एंड इफ यू आर थिंकिंग दैट कि जितने पॉजिटिव आयंस रहेंगे उतने ही नेगेटिव आयंस रहेंगे, सो वो पर्टिकुलर कंसेप्ट यहाँ पे अब भी तो फिलहाल वर्क नहीं कर रहा, बिकॉज वी आर नॉट कंसीडरिंग अबाउट द क्लोराइड आयंस ओवर हियर, बिकॉज दैट नॉट। हाँ बोलो सर जैसे पॉजिटिव नेगेटिव जो बैलेंस होता है हाँ, सर, हाँ, यहाँ पे सर बेस्ड ऑन द concentration है, right? ओके सर, Right. बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बैलेंस होते बैलेंस हैं। है, राइट। सो तो यूजुअली वो ऐसी डाउट रहता है। condition में- हाँ हाँ सर बोलो। ऐसे कंडीशन में सर Cl कब रिलीज होता है और Cl कैसे बैलेंस होएगा सर? ओके, Cl रिलीज कब होगा? तब जब अपना ये इनहिबिटरी स्टेट अराइज होगा, ओके। और जैसे इनहिबिटरी अराइज होगा, ओके, दैट पर्टिकुलर जब तक वो सिग्नल उस पे रहेगा तब तक दैट पर्टिकुलर चैनल विल गोना ओपन, और जैसे ही वो सिग्नल विल गोना क्लोज, ओके, तो दैट की योर दैट पर्टिकुलर एरिया ऑफ दैट बॉडी or a neuron will able to conduct the signal, okay. At that particular period of time chloride ion will gonna close and negative ions will gonna move to other part, तो जिसकी वजह से क्या रहेगा, that particular area will be in a polarized state, so they will try to merge, and उसको balance करने के लिए definitely positive ions will come into picture like a potassium or a sodium, okay, क्योंकि यहाँ पे भी सोडियम पोटेशियम चैनल्स रहेंगे, but as per the condition, ओके, क्लोराइड चैनल विल गोना ओपन, और जिसकी वजह से अंदर नेगेटिविटी बढ़ जाएगा, समझा? सर तो ये जो एक्साइटेड स्टेट वाला रहता है सर चैनल, वो सर मतलब सब चीजों के लिए यूज होता है ना सर, वो जो करते रहता है। राइट, जो तुम्हारा बॉडी फंक्शन कर रहा है वो टाइम पे ये पर्टिकुलर वर्क करेगा, मोस्टली यही वर्क करता है, एक्साइट वाला ही वर्क करता है।
सर एक्साइटमेंट से लेके पेन तक सर जितने भी सिग्नल है सब यही वाला कैरी करता है राइट 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 राइट, यही वाला कैरी करता है। सर। ओके सर। ओके, और किसी को कुछ डाउट्स? Okay, so we'll just go through with the again kind of a neuron, because majorly topic is already covered कि न्यूरॉन क्या है, राइट? उसके अंदर क्या क्या इम्पल्स के दो वेज है नर्व कंडक्शन का। पहला है दैट्स चैनल्स व्हिच आर प्रेजेंट न्यूरोलिमा, बट अभी अभी भी स्टूडेंट लोग के माइंड में डाउट रहेगा कि सर न्यूरोलिमा कहाँ है। सो दैट विल गोना कवर टुडे। वापस से जस्ट आई एम ट्राइंग टू फोकस ऑन मोर विजनरी फॉर्मेट, ताकि तुमको एक्चुअल पता लगे न्यूरोलिमा लेयर कहाँ पे है, कैसे बनता है, क्या है उसका फंक्शनैलिटी, दैट विल गोना कवर टुडे। ओके, एंड देन वो फर्स्ट कंडक्शन था न्यूरोलिमा में, पोटेशियम एंड सोडियम चैनल। सेकंड you have a synaptic cleft which is axon terminal and dendrites का first part of the other neuron. Now basically जो न्यूरॉन होता है, okay, so this is a normal neuron which already knows about it. Okay, you have a dendrites, you have a multiple dendrites. ये dendrites क्यों है, already know, all of you are aware of that. dendrites का काम क्या है? सर इम्पल्स कंडक्ट करना। इम्पल्स रिसीव करके कंडक्ट करना, राइट? देन दे विल गोना मूव टुवर्ड द साइटोन। आपको यहाँ पे न्यूक्लियस मिलेगा, और ये स्मॉल स्मॉल डॉट्स है, दे आर द निसिल ग्रैन्युल्स बेसिकली यूज्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, एंड आई होप ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज द प्रोसेस टू सिंथेसाइज द प्रोटीन। प्रोटीन सिंथेसिस, हाँ, पता है? सर वो ट्रांसक्रिप्शन नहीं ट्रांसलेशन पता है? वाला, हाँ वो वाला। हाँ, सर पता है सेल या के नहीं पता अंदर है? होता है। सर सेल हाँ, के अंदर सेल। होता है ना। हाँ सर पता है। बाकी लोगों को नहीं पता है क्या? ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन। ओके, ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है? सर ट्रांसक्रिप्शन इसमें होता है सर, क्या सर को बताता हूँ सर, साइटोप्लाज्म में। वेरी गुड। ट्रांसलेशन? सर फिर न्यूक्लियस में आता है सर, ट्रांसलेशन सर न्यूक्लियस में आता है। उसमें सर जो टीआरएनए रहता है ना, सर रुको भूल गया सर। सर टीआरएनए ये नहीं, एमआरएनए सर कॉपी करता है डीएनए कोड। तो वो कॉपी कहाँ होता है? सर न्यूक्लियस में डीएनए स्ट्रैंड्स का। सर डीएनए स्ट्रैंड्स का एक स्ट्रैंड निकल जाता है सर, उसमें कॉपी होता है। वो पता है कैसे निकलते हैं? हाँ सर, उसको कुछ प्रोसेस है सर। सर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है सर। हाँ राइट, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, एग्री। रेप्लिकेशन होता है, फिर सर एक स्ट्रैंड आता है बाहर सर, जिसमें कॉपी हुआ रहता है ना सर एमआरएनए से, उसको सर ट्रांसक्रिप्शनल आरएनए बाहर लेके आता है सर। बट हाउ दे विल गोना सिलेक्ट कि पूरा डीएनए कॉपी होता है? नहीं सर, सर एक पर्टिकुलर स्ट्रैंड होता है। सर, पर्टिकुलर स्ट्रैंड डीएनए स्ट्रैंड सर, एक पर्टिकुलर पार्ट सर, उसके अंदर ही सर चारों सर सीक्वेंस रहेंगे ना सर। लेकिन पूरे डीएनए में रहते हैं ना सीक्वेंस, तो पर्टिकुलर पार्ट ही क्यों? सर बट जो डीएनए में जीन रहेगा सर, वो जीन तो सारा सेम ही रहेगा सर। सर नियासिन, थियामाइन सर, ये सब तो सेम है सर कंपोनेंट्स डीएनए के, पूरे डीएनए स्ट्रैंड में। तो एक छोटा सा पार्ट लिया तो सर वही यूजफुल रहता है सर। ओके, तो you are saying that कि one DNA will gonna represent one gene? सर ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन सर जो डीएनए का स्ट्रैंड है सर, सर उसके अंदर ही जीन्स है सर। तो सर पूरा जो टोटल जितना भी सर स्ट्रैंड है ना सर, तो टोटल स्ट्रैंड सर सेम ही फंक्शन दिखाएगा। तो सर हम लोग नहीं सर, नहीं, मैं just पूछ रहा हूँ। I just wanted to see, like, you know, if you have any query, definitely I will gonna rectify. So as per your statement, I have recognized that ये जो adenine, guanine, thymine, cytosine, ये जीन है। सर डीएनए के स्ट्रैंड से सर, ये सर रेक्टेंगुलर सर लगे रहते सर डीएनए में।
बीच में. Okay, so if I will gonna draw the diagram, okay, तो adenine basically ये सब जो DNA के जो बीच में एक bond रहता है, right? And so you have adenine, then you have ribose sugar, right? And this will gonna combine and it will gonna, let's say ये adenine है तो यहाँ पे thymine रहेगा, तो ऐसे करके न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं. ओके, तो ये बेसिकली ये जो एडेनाइन, गुआनिन, थाइमाइन, साइटोसिन, ये तो नथिंग बट द न्यूक्लियोटाइड. ओके, हट के सर यूरासिल हो जाता है ना. हाँ, आरएनए में यूरासिल हो जाता है और जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो थाइमिन का यूरासिल हो जाएगा. या राइट. बट अभी लेट मी हेल्प यू. ओके, तो ये जो पूरा आपको जो पूरा डीएनए दिख रहा है ना, यहाँ पे यू हैव अ मल्टीपल सीक्वेंस. Okay, so as you were saying, okay, you have a multiple sequence like AGTC, ATTC, कुछ भी sequence हो सकता है. और तुम्हारे बॉडी को लेट्स से ये वाला एरिया का ही क्या करना है, प्रोटीन बनाना है. बेसिकली प्रोटीन क्या होता है? इफ एट द एंड जो आपको प्रोटीन मिलता है वो बेसिकली क्या होता है? लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ व्हाट? एसिड्स. ऑफ राइबोसोम, amino acids, right? sorry sir, amino acids. Right. So you have a long chain of amino acid. That's correct. तो अभी amino acid हमको पता है कि हमारा end product amino acid होना चाहिए, but वो कौन सा amino acid होना चाहिए, उसका कोड क्या है वो हमको नहीं पता है. वो कोड हमको DNA से मिलेगा. इसके लिए हम लोग ट्रांसक्रिप्शन करते हैं. और let's say for example हमको ये पर्टिकुलर एरिया का ही प्रोटीन बनाना है. Okay, this will gonna help us to make the protein. तो हम लोग यही वाले पार्ट पे ये DNA को हम लोग क्या करेंगे, एक आरएनए पॉलीमरेज आता है. ओके, जो कि एक एंजाइम है, वो ये वाले एरिया में आता है, इसको बाइंड करेगा. एंड जब वो बाइंड करता है तो तुम्हारा डीएनए उसके अंदर क्या हो जाता है, स्ट्रेट हो जाता है. तो आपको आगे जो मिलेगा दिस विल गोना इन अ कॉइल्ड स्टेज, बट इतना वाला पार्ट इट विल गोना अनकॉइल. एंड एज यू हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म दैट यहाँ पे दिस विल गोना आरएनए स्ट्रैंड विल गोना क्रिएट. एंड फिर ये यहाँ से बाहर निकलते बाहर आ जाएगा. एंड देन इट विल कम इनटू द साइटोप्लाज्म. एंड साइटोप्लाज्म में आने के बाद दिस इज डन बाय द मैसेंजर आरएनए. सर राइबोसोम, सर ये राइबोसोमल यूनिट होता है, वो यहाँ पे एक पॉलीमर चेन बनाता है अमीनो एसिड्स का. राइट. तो वो दैट्स बोलते हैं ना. दैट्स द लास्ट पार्ट. या दैट्स द लास्ट पार्ट. ये अभी mRNA आ गया, अभी तुम्हारा tRNA पिक्चर में आएगा. tRNA क्या करेगा, अभी ये जो मैसेज आया है ना, ये मैसेज के बेस पे बाहर लेके जाएगा ना सर. हाँ, आप क्या बोल रहे हो सर? जो tRNA सर शायद न्यूक्लियस के बाहर लेके जाता है ना सर, जितने भी कंपोनेंट्स है साइटोप्लाज्म में. सर मतलब न्यूक्लियस में जो mRNA के बाद प्रोसेस के बाद जो बना है सर, उसको वो बाहर लेके जाता है ना सर साइटोप्लाज्म में फर्दर प्रोसेस के लिए. हाँ, that's ये जो मैसेंजर आरएनए है ये अपने आप आ जाएगा न्यूक्लियस के बाहर. ठीक है, बट आफ्टर दैट जो भी मैसेज इसको जो आपको डिकोड करना है, तो डिकोड करने के लिए tRNA क्या करता है, tRNA एमिनो एसिड को लेके आता है, बिकॉज एज दे हैव यूज्ड द वर्ड ट्रांसफर, राइट. सो आफ्टर दिस विल गोना हेल्प टू मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. तो tRNA क्या करता है, तुम्हारा एमिनो एसिड लेके आता है. एंड बेस्ड अपॉन द मैसेंजर आरएनए का सीक्वेंस ये tRNA बाइंड होगा और उसका जो एमिनो एसिड रहेगा, फिर इसका जो एमिनो एसिड रहेगा. आई होप यू ऑल ऑफ यू नो कोडॉन एंड एंटीकोडॉन क्या होता है, राइट? पता है कोडॉन क्या होता है, एंटीकोडॉन क्या होता है? यस. तो कोडॉन क्या होता है? There, can you hear me? सर थोड़ा थोड़ा सर याद आ रहा है सर, थोड़ा थोड़ा. Okay, so codon is nothing but it is जब तीन न्यूक्लियोटाइड हो जाते हैं, let's say for example ATC या AGT या JTC whatever, तो जो भी तीन न्यूक्लियोटाइड जब मर्ज होते हैं that particular known as codon. And we have start codon and stop codon. तो स्टार्ट कोडॉन पे क्या हो जाएगा, आपका tRNA आएगा, सब बहुत सारे एमिनो एसिड लाएगा. एंड एट द एंड जो आपको ये एमिनो एसिड मिले ये सब बाहर आएंगे. एंड सब एमिनो एसिड जब इसमें एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होंगे, एंड दैट इज जॉइंट डन बाय द राइबोसोमल आरएनए. So that is the main, you will get the functionality of the protein synthesis, and that is done by the Nissl granules in the
न्यूरॉन। So, ये जो मैंने अभी पढ़ाया है, this was the concept of standard 10th. This was not for your 11th, but I have done the revision so that you should be aware of that कि basically क्या होता है। Okay, so yeah, so let's move on to the next part. So this is the dendrites. They have nasal granules. We have nucleus. यहाँ से you will going to see we have axon hela, which shows that कि अभी आपका axon continue होगा। Now the most interesting part, ये जो आप देख रहे हो, फिर आगे ये कंटिन्यू हो रहा है, बट बीच में का नहीं दिख रहा है ना, बीच में का आपको स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रहा है, फिर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रहा है। उसका रीजन है, क्या रीजन, दैट वी गोना कवर। बट ये जो आपको जो दिख रहा है, ओके, दे आर नथिंग बट दे आर द एक्सोलेमा। सो नाउ ये वाला एरिया दिख रहा है, जूम करके अभी, यस और नो? अरे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। ओके, तो ये वाला जो लेयर है, ओके, ये वाला जो आपका जो ये वाला जो लेयर है, दैट लेयर इज नोन एज एक्सोलेमा। जो आपको ये मेन एक्सॉन का जो लेयर है, ओके, दैट लेयर इज नोन एज एक्सॉन लेयर। ये बेसिकली नीचे कंटिन्यू भी है, ये पूरा कंटिन्यू है। वो क्यों नहीं दिख रहा है दैट आई विल लेट यू नो, बट ये पूरा एट द एंड टू एंड कंटिन्यू है, ओके, एंड दैट लेयर इज नोन एज एक्सोलेमा। नाउ I hope all of you heard about Schwann cells. पढ़ाया, सुना या नहीं सुना है? यस सर। तो ये तुम्हारा एक्सोलेमा हो गया, ओके। नाउ इसके ऊपर, ओके, ये तुम्हारा एक्सोलेमा हो गया, ओके। दिस विल गो इन अ पाइप फॉर्मेट। इसके ऊपर, okay, you will going to see you have Schwann cells, okay। ये Schwann cell है। ये Schwann cell क्या करता है? ये खुद ही एक लेयर बनाता है, towards the exolema in a circular format, okay। and ये वाला जो लेयर है, that layer is known as न्यूरिलेमा। मतलब तुम लोग ने अभी तक जितने भी सोडियम चैनल देखे या पोटेशियम चैनल देखे, मोटर देखा, जो भी देखा, वो आपको कहाँ मिलेगा? ये वाले लेयर में। विच शोज दैट, मैंने आपको डायग्राम बताया था ना, ये तुम्हारा एक्सॉन का लेयर है, ये तुम्हारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का लेयर है, एंड ये तुम्हारा इन बिटवीन द न्यूरिलेमा एंड एक्सॉन का लेयर है। समझा या नहीं समझा? Have you understood or not? Girls, boys? सर फिर से समझाओ ना। एक मिनट अपने। ओके, सो जब मैंने स्टार्ट किया था, राइट, वो द लास्ट लेक्चर वी हैव सीन ना, ये एक्सॉन है, उसके ऊपर न्यूरिलेमा है, फिर यहाँ पे सोडियम चैनल है, फिर यहाँ पे पोटेशियम चैनल है, फिर यहाँ पे मोटर है, फिर यहाँ पे बहुत सारे सेल्स है, यहाँ पे सेल्स है, राइट। तो ये जो एक्सॉन वाला पार्ट था वो एक्चुअली ये है, राइट। सो यू कैन सी न्यूरिलेमा ओवर हियर एंड यू कैन सी द एक्सोलेमा, ओके। समझा या नहीं समझा अभी? हाँ सर। अब तो ये था श्वान सेल्स। अब क्या होता है, ये जो श्वान सेल्स है, दे विल गोना अगेन कंटिन्यू। ये क्या करेगा, एक और कवरिंग बनाएगा, दैट कवरिंग इज नोन एज माइलिनेटेड कवर। दैट कवरिंग इज नोन एज माइलिनेटेड कवर। क्यों बनाया? जस्ट फॉर एन इंसुलेशन। क्यों? ताकि जो सिग्नल है वो उड़ के कहीं और ना जाए, राइट। दैट शुड बी कंडक्ट इन सच अ वे ताकि वो फटाक से कंडक्ट हो जाए, और वो पर्टिकुलर जो रूट है वही रूट से वो प्रॉपरली फॉलो हो, ना कि वो रूट के बाहर जाए, वो जंप ना करे बाहर जाके, ओके। So to just make sure that that particular axolema is covered by the myelin sheath. तो आप
हाँ बोलो। सर अगर सिग्नल जंप करता है बाहर तो क्या होगा? सिग्नल जंप करता है तो वो सिग्नल का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलेगा, आपके ब्रेन तक ही नहीं पहुंचेगा, तो वो सिग्नल आपके लिए वर्थलेस हो जाएगा, आपके बॉडी को प्रॉब्लम नहीं होएगा। ओके सर। ओके नाउ चलो, सो तो ये थे, that was the layers. You have exolemma, then we have Schwann cell which is going to create neurilemma, and the Schwann cell is going to create myelin sheath which will be acting as a insulator. Now तो that's the reason ये जो आपको पूरा कवरिंग दिख रहा है ये पूरा myelin sheath से कवर है, that's why you will going to see only this particular Schwann cell and ये पूरा कवरिंग, इसके अंदर वो exolemma छुप गया है. Have you understood now? Yes, sir. Okay. Now, let me zoom out. Okay. So here I have just given the small representation that this is an exolemma, then the Schwann cell, then we have neurilemma, and then we have myelin sheath, which will gonna protect and will gonna acting as an insulator. Now, जो आपको ये जो non insulate दिख रहा है, मतलब जो non covering दिख रहा है, that particular exolemma is known as node of Ranvier, which don't have protection. Okay, and for fast conduction, जभी भी you will going to see myelin sheath, okay, in the neuron, तो वो टाइम पे क्या होता है, ये एक्सॉन से ये वाले एक्सॉन में आता है, ये वाले एक्सॉन से आता है, फिर ये वाले एक्सॉन, which shows that fast conduction. यहाँ से आने डायरेक्ट आना चाहते, they will gonna jump, okay, into this exolemma, okay, and they will just make sure that जब ये jump कर directly they will gonna reach to this particular exolemma, okay, directly वो अंदर से सिग्नल ट्रांसफर नहीं होता है, एंड जब जब myelin sheath रहेगा you can see this type of fast conduction. But if they don't have a covering as a myelin sheath, at that particular time they have to conduct through this particular exolemma from axon hillock towards the axon terminal. Have you understood? सबको समझ रहा है स्टूडेंट्स? Again, the last topic. At last, I will ask you one question, okay, and उसका आंसर मैंने already दे दिया. I just wanted to make sure कि किसी लोगों का ध्यान था. Okay. Then we have myelinated and non-myelinated nerve fiber. In myelinated, you have cranial nerve and spinal nerve. तो जितने भी cranial nerve है, जितने भी spinal nerve है, they all are myelinated nerve fiber, which shows that a quick response, quick signal generated, okay, reach to the CNS, and you get the quick response. That is all. That's why we require myelinated nerve fiber. But where we will able to see the non-myelinated, there are autonomic nervous system and somatic neural system. Okay, as they have word use a somatic, wherever you have a skin and all, okay, that particular area will be connecting as a non-myelinated nerve fiber. But the cranial nerve and the spinal nerve, all the nerves, they are been covered with the myelin sheath. Have you understood? Okay, last topic. Now the most interesting part. Okay, most interesting part, like, okay, all of you know in your brain you have various lobes. You have temporal lobe, occipital lobe, okay, then you have frontal lobe and parietal lobe. Okay, now as we all of you know, we have myelin sheath at the axon of the neurons. But if they want to transfer signal from temporal lobe to the occipital lobe or occipital lobe to parietal lobes, और तुम्हारे ब्रेन के अंदर ही अगर उसको क्या करना है, सिग्नल ट्रांसफर करना है, so at that time there is a one special nerve cells will come into picture known as oligodendrocytes, and I have already informed you about this particular cells. Yes or no? Nerve cells मैंने पहले इन्फॉर्म किया है, नहीं किया ये सेल्स के बारे में? यस सर, आप बोले थे पहले इसके बारे में. तो मैंने क्या बताया था उसके बारे में, कोई बता सकता है मेरे को? क्या सर? What, when I have explained this particular cell, that is oligodendrocytes, ये सेल्स के बारे में मैंने एक स्पेशलिटी बताया था. वो स्पेशलिटी मुझे कौन बताएगा? बिकॉज यू हैव डन मेनी टाइम्स ऑफ होमवर्क. अगर आपने अभी आंसर नहीं दिया तो, and definitely you will going to see the textbook.
सॉरी नोटबुक, या सिर्फ कंडक्ट भी कर सकते हैं वो वाला क्या कर सकते हैं? मिक्स टाइप। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एंड which protects whatever it is that अगर मैंने वो बता दिया तो डेफिनेटली तुम लोग आंसर इजीली दे दोगे। which protects dash, ये बताएगा क्या है? which protects dash, सर ये ओलिगोकॉन्ड्रोसाइट्स डेंड्रोसाइट सर शायद से माइलिन शीट प्रोड्यूस करता है। नहीं वो तो मैंने वहां पे लिखा है, वो नहीं एक्चुअली। मिला क्या आंसर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन ये है कि ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का मेन फंक्शनलिटी क्या है, एंड द पीपल्स हु हैव अटेंडेड द फर्स्ट लेक्चर, और आई थिंक सो फर्स्ट और सेकंड लेक्चर, एट दैट टाइम आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस टॉपिक, सो जो प्रेजेंट है आई थिंक दे कैन गिव द आंसर, बट स्टिल आई एम नॉट एबल टू सी एनीवन ऑफ देम at least trying. इंसुलेटिंग एक्सॉन सेल्स? No, नहीं। और ये स्वैन सेल्स के सिमिलर होता है। बोल सकते हो, 98% राइट है। ठीक है, so let me explain this topic. Okay. So यहाँ पे अब देखो दो न्यूरॉन्स दिख रहे हैं। Okay, so दो न्यूरॉन्स, it can be any of them, like सर वो ओलिगोडेंड्रोसाइट सर अपने आप को सर एक लेयर बना देते हैं सर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स के ऊपर। Okay, so ये जो दो न्यूरॉन्स है, right, and this is the oligodendrocytes, they will gonna bind up with every neurons, okay, ताकि ये let's say this is a frontal lobe का neuron है, ये temporal lobe का neuron है, so if they want to transfer a signal from frontal to temporal lobe, so oligodendrocyte will come into picture, and this automatically will gonna create the myelin sheath, okay, and oligodendrocyte will also create the myelin sheath in the brain, okay, in the brain of the wherever you can say the central nervous system, okay, that will be the right answer as well. Now we have seen the two myelin sheath, one which is available on the neuron, second we have seen interneuron, okay, means you can say more than one neuron, जब दो neuron या तीन neuron के बीच में अगर you want to transfer the information, so in CNS, so oligodendrocyte come into picture. So now you have seen the two types of the neurons, and both of them have a myelin sheath, okay. So in normal neuron, who will gonna create myelin sheath? सर श्वान सेल ना? Or and in brain you have oligodendrocytes. So this is the most important question, okay, that is asked for an MCQ, कि जो myelin sheath है, okay, brain में कौन बनाता है? It will be oligodendrocytes, and if they ask in a normal neuron, your answer should be Schwann cells, okay. Great. आज के अभी तक किसी को डाउट है? नो सर। सर So yeah, that's all from my end for today's lecture. चलो फटाफट अभी लिखना स्टार्ट करो। कैसे लिखोगे अभी? डायग्राम बनाओगे? फटाफट बनाओ। पर स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाने में टाइम जाएगा सर। सर इसके नीचे भी और एक स्लाइड था ना? सर ये डायग्राम के पीछे भी और एक स्लाइड था ना? पीछे? नहीं हो गया। सर मुझे आपका स्क्रीन विजिबल नहीं है सर।
किसको विजिबल नहीं है? सर मेरे को क्यों? सर पता नहीं ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है।